اکتوبر 2024 میں جب 25 اکتوبر ریٹائرمنٹ ڈیٹ سامنے نظر آ رہی ہے، جب نظر آ رہا ہے کہ کون آئینی ترمیم کرنا چاہتا ہے، ایک حملہ پسپا ہوا، وہ ناکام ہوئے، اب دوسرے حملے کے لیے یہ ان کو کمک پہنچائی جا رہی ہے. تو یہ ہے وہ باتیں جو ہمیں سامنے رکھنی ہے. باقی تو تکنیکی بحث ہے، ہم اس طرح بھی بحث کر سکتے ہیں، اس طرح بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ بات اہم نہیں ہے. بات جو اہم ہے وہ موقع، محل، سیاق و سباق میں اہم ہے. جو سماعت ہوئی ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے اور دوبارہ پھر سے جو ہے اس کو درخواست جمع کروا دی گئی سب کی جانب سے. تو بائیکاٹ کرنے کے بعد اس فیصلے کے اوپر کیا اثر انداز ہوگا؟ اس کا آئینی ہوگا؟ دیکھیے، بائیکاٹ ایک اخلاقی عمل ہوا کرتا ہے. بائیکاٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں ہے. بائیکاٹ جو ہے وہ قوم کے ضمیر کی جانب ایک جملہ ہوتا ہے. ہم قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی عدالت سے یہ فیصلہ آیا ہے جس عدالت پر ہمیں اعتبار نہیں، آپ کو اعتبار نہیں ہونا چاہیے. جو اس کا طریقہ کار تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر ہمیں کسی قسم کا انحصار نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے ایم این ایز کو، صرف پی ٹی آئی کے نہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، تمام جماعتوں کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کی بنیاد پر اپنا ضمیر مت بیچنا. سلمان علی راجہ صاحب، آپ نے بھی عرض کیا کہ قوم سے درخواست ہے وہ نکلے، کیونکہ اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے. جب اس وقت سماعت جاری تھی، دوسری جانب فیصل موٹر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، کیونکہ آپ باہر نکلنے کی کال دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈی چوک احتجاج ہے عمران خان صاحب کے سیاسی تابوت میں آخری کی ثابت ہوگا. اس کو کیسے رسپونڈ کریں؟ انہوں نے کہا کہ آہنی ہاتھوں سے نکلا جائے. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا، جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں ان کی باتوں کو آپ اتنا سنجیدہ مت لیا کریں، اور اس کو تو ویسے بھی سنجیدہ نہ لیا کریں. جو آدمی ایک ٹاک شو میں جوتا ٹیبل پہ رکھ کے جو ہے وہ قوم کے سامنے بیٹھا ہو، اور پھر جس طریقے سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں سینیٹر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے یہ غیر سنجیدہ باتیں. اور آج کے موقع پہ اس کا آنا، اور پھر ہمارے چیف منسٹر کے حوالے سے بھی یہ بات کرنا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور یہ وہی شخص ہے جس نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہے خان صاحب پہ جب گولی چلی تھی تو اس سے پہلے بھی آ کے میڈیا پہ ایسی بات کی تھی. میں صرف یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی آپ کو بٹھایا اور یہ بات کروائی ہے، یہ سوچئے گا بھی مت. اس ملک کو انتشار کی طرف بالکل دھکیلنے کی کوشش مت کریں. میں جن دوستوں نے اس کو بھیجا پریس کانفرنس کے لیے ان کو بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں کہ جن کا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہے. کل پوری قوم کسی انتشار کا شکار ہو جائے گی. اس میں اور بھی میں نہ اس کا ضمیر ہے نہ وہ سچ بولتا ہے. ایم کیو کے حوالے سے جو باتیں کی، کراچی کے حوالے سے باتیں کی، اگر وہ باضمیر آدمی ہوتا تو اس کو پارٹی اس وقت چھوڑ لانی چاہیے تھی جب وہ چیزیں ہو رہی. We'll keep it to 63. ایک کوئی اور سوال ہے تو بات. سلمان علی صاحب، آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کالے آئینی ترمیم کا ساتھ نہ دیں. میڈیا کے ساتھ بھی آپ نے مطالبہ کیا کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کے بعد آپ کے سب سے بڑے اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. کیا آپ کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، جو ایجوکیشن آپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیے، اس بارے میں ابھی میری تو ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ان کی اپنی ایک جماعت ہے، ان کی اپنی پالیسی ہے. وہ ثابت قدم کھڑے رہے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. باقی وہ کیا رائے عمل اپناتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ اس پہ کمنٹ کریں گے جو آج کیس کی سماعت ہوئی، اس میں پریشر جیسا نہ کہا کہ عمران خان کی کچھ گزارشات ہیں وہ وہاں سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اس پر چیف جسٹس نے اس کی بھی اجازت دی تھی، اور جو اجلت میں فیصلہ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ بظاہر مارچ اسٹیٹنگ کی اجازت دی عدالت نے؟ میں نے یہی آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ یہ تو آج فیصلہ ہے ہی دعوت گناہ. یہ فیصلہ جس طریقے سے آیا، جس صورت سے آیا، جس تناظر میں آیا، وہ تو یہی ہے نا کہ جو پسپائی ہو چکی تھی ایک دفعہ آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس کو اب ایک دوبارہ حملے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اب ان کے ضمیروں پر حملہ کرو. اچھا سر، کل جو احتجاج ہو رہا ہے ڈی چوک پہ، آپ کی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹریٹجی کیا ہے، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ اسلام آباد دیکھیے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. دفعہ 144 کی بات ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ڈی چوک پہنچے گی یا باہر؟ سب ڈی چوک پہنچیں گے، بس اتنا ہی کافی. بھائی چھوڑ دیجیے، ہمیں نہیں پتا لوگ کیا کریں گے، کیا لائے عمل اپنائیں گے. دیکھیں یہ بات لوگوں پہ آپ چھوڑ دیجئے، لوگ کیسے کرتی ہیں. یہ مقصد ہے آواز بلند کرنا. آواز کیسے کون بلند کرے گا، کہاں ہوگی، یہ کل دیکھیں. یہ جلسہ ہوگا یا اکٹھے ہوں؟ یہ پرامن احتجاج کی کال ہے اور یہ جلسے کی کال نہیں ہے.
शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। आप बताएं आप क्या करें। सर क्या पकड़ने का 63 ए पे रखे ना। आप कर ले सो आप लोगों ने 63A के फैसले के हवाले से और जो आईनी तरमीम लाया जा रहा है, अपने तमाम MNAs को अंडरग्राउंड किया था उनको सिक्योर करने के लिए। अब क्योंकि फैसला आ गया है तो उनको किस तरीके से आप टैकल करेंगे कि वो वोट देने ना आ सके, उनके हवाले से आप लोग क्या they are all safe और हमसे राब्ते में हैं, सारे सब सेफ हैं। कल का मुझे पता नहीं, इल्म गैब मेरे पास है नहीं। एज वी स्पीक दे आर ऑल विद अस, दे आर ऑल सेफ एंड इन सेफ हैंड्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उस वक्त तनाज़ा खड़ा हुआ जब पंजाब में मामलात बदल रहे थे, तो इस फैसले के असरात दीगर सियासी जमातों के लिए क्या होंगे? क्योंकि वो तो इस पॉइंट को लेकर कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही गलत रहा है। पहले उन्होंने जैसा कि परवेज इलाही को एक मौका पर तो कहा कि वो जाकर वज़ीर आला का ओहदे का मनसब भी संभाल लें और जाकर हलफ ले लें। देखिए शिराजी साहब, दो बातें हैं। एक ये कि क्या वो फैसला दुरुस्त था या नहीं था, लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया उस पर बहस हो सकती है। वो 2022 में आया था और उसका असर खत्म हो गया था। देखिए ये हुकूमत जो चली परवेज इलाही साहब की, वो इस फैसले की वजह से नहीं चली थी। आप याद करिए कि उसके बाद 17 बाई इलेक्शन हुए थे। उन बाई इलेक्शंस में पीटीआई जीती थी, इस वजह से पीटीआई की हुकूमत बनी थी, इस फैसले की वजह से नहीं बनी थी। ये फैसला ना भी होता और उन बाई इलेक्शंस का 17 बाई इलेक्शंस का नतीजा वही होता जो था, तो पीटीआई की हुकूमत बननी थी। लोग बार बार कहते हैं कि इस फैसले की वजह से पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनी, ये बिल्कुल गलत बात है। फैसला सही था या गलत था, ये सवाल नहीं है हमारे सामने आज। सवाल ये है जिस तरीके से इस फैसले को रद्द किया गया है, आज जिस मौके पे इस फैसले को रद्द किया गया है वो आपके सामने है। 2022 का एक फैसला आप उठाते हैं अक्टूबर 2024 में, जब 25 अक्टूबर रिटायरमेंट डेट सामने नजर आ रही है, जब नजर आ रहा है कि कौन आईनी तरमीम करना चाहता है। एक हमला पसपा हुआ, वो नाकाम हुए, अब दूसरे हमले के लिए ये उनको कुमक पहुंचाई जा रही है। तो ये है वो बातें जो हमें सामने रखनी है। बाकी तो तकनीकी बहस है, हम इस तरह भी बहस कर सकते हैं, उस तरह भी बहस कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये बात अहम नहीं है। बात जो अहम है वो मौका, महल, सियाको सबाक में अहम है। जो समाज हुई है उसका बाइकआउट कर दिया गया है और दोबारा फिर से जो है उसके ऊपर दरखास्त जमा करवा दी गई सबकी जानिब से। तो बाइकआउट करने के बाद इस फैसले के ऊपर क्या असरअंदाज होगा? इसका आईनी होगा? देखिए बॉयकॉट एक अखलाकी अमल हुआ करता है। बॉयकॉट ये कहता है कि हमें आप पर एतबार नहीं है। बॉयकॉट जो है वो कौम के ज़मीर की जानिब एक जुमला होता है। हम कौम के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक ऐसी अदालत से ये फैसला आया है जिस अदालत पर हमें एतबार नहीं, आपको एतबार नहीं होना चाहिए। जो इसका तरीकाकार था वो ऐसा था कि इसके ऊपर हमें किसी किस्म का इन्हिसार नहीं करना चाहिए। हम अपने MNAs को, सिर्फ PTI के नहीं, PMLN, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातों के MNAs और सेनेटर्स को कह रहे हैं कि इस फैसले की बुनियाद पर अपना ज़मीर मत बेचना। सलमान अली राजा साहब, आपने भी अर्ज किया कि कौम से दरख्वास्त है वो निकले, क्योंकि अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे। जब उस वक्त समाज जारी थी, दूसरी जानिब फैसल वाउडर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योंकि आप बाहर निकलने की कॉल दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो डीचो के एहतजाज है इमरान खान साहब के सियासी ताबूत में आखिरी की साबित होगा। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करें? मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा, जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स है उनकी बातों को आप इतना संजीदा मत लिया करें, और उसको तो वैसे भी संजीदा ना लिया करें। जो आदमी एक टॉक शो में जूता टेबल पे रख के जो है वो कौम के सामने बैठा हो, और फिर जिस तरीके से वो इलेक्ट हुए हैं सेनेटर, मैं ये समझता हूँ कि ये बातें जो है ये गैर संजीदा बातें। और आज के मौके पे उसका आना और फिर हमारे चीफ मिनिस्टर के हवाले से भी ये बात करना कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। और ये वही शख्स है जिसने पहले भी, आपको याद है, खान साहब पे जब गोली चली थी तो उससे पहले भी आके मीडिया पे ऐसी बात की थी। मैं सिर्फ ये तंबीह करना चाहता हूँ कि जिसने भी आपको बिठाया और ये बात करवाई है, ये सोचिएगा भी मत, इस मुल्क को इंतशार की तरफ बिल्कुल धकेलने की कोशिश मत करें। मैं जिन दोस्तों ने इसको भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उनको भी कहूंगा कि ऐसे लोगों से इज्तनाब करें कि जिनका कोई हिसाब किताब कोई नहीं है। कल पूरी कौम किसी इंतशार का शिकार हो जाएगी। इसमें और भी मैं ना उसका ज़मीर है ना वो सच बोलता है।
एमक्यूएम के हवाले से जो बातें की, कराची के हवाले से बातें की, अगर वो बाज़मीर आदमी होता तो उसको पार्टी उस वक्त छोड़ना नहीं चाहिए थी जब वो चीजें हो रही। We'll keep it to 63. एक कोई और सवाल है तो बात करें। सलमान राय साहब, आपने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट से ये मुतालबा किया है कि इस काले आईनी तरमीम का साथ न दें। मीडिया के साथ भी आपने मुतालबा किया कि आपके साथ खड़े हों। जो इसके बाद आपके सबसे बड़े इत्तेहादी हैं मौलाना फजल रहमान साहब, क्या आपकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है, जो एजुकेशन आप करने जा रहे हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब आपका साथ देंगे? देखिए, इस बारे में अभी मेरी तो उनसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनकी अपनी एक जमात है, उनकी अपनी पॉलिसी है, वो साबित कदम खड़े रहे हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, हम उनके शुक्रगुजार हैं। बाकी वो क्या राय अमल अपनाते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता। आपसे एक आईनी तरमीम दरकार है अपने आप को तवालत देने के लिए। तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ हर रियासती इदारा जो है वो खड़ा है, लेकिन ये हमारे खिलाफ नहीं खड़ा, ये पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ खड़ा है, ये पाकिस्तान में शराफत के खिलाफ खड़ा है। ये कहना कि आइन में तरमीम चूंकि दरकार है बाज को, इसलिए उस तरमीम की खातिर हम रिकाउंटिंग भी कराएंगे, 50 साल का हमारा कानून जो है उसको बदल कर लोगों के वोट जो हैं वो दोबारा गिनकर सीटें महरूम करेंगे, पीटीआई को, उन जमातों को देंगे जो आइन में तरमीम करना चाहती हैं। आज ये कहना कि जाओ इनके एमएनएज और सेनेटर्स इन पे दबाव डालो, इनको अगवा करो, इनकी बीवियों बच्चियों को हरासा करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन तोड़कर इनको तरमीम कर डालो। अब ये तरमीम क्या है जिसकी खातिर हम आपके सामने बैठे हैं, हम मुदाफियत कर रहे हैं, हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। एक लम्हे के लिए आईनी अदालत के मामले को हम साइड पे रख देते हैं। आप ये देखिए, हमारा आइन जो है वो एक नुक्ते पे खड़ा है। वो नुक्ता ये है कि कुछ हुकूक बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। आवाज का हक, बात करने का हक, इकट्ठा होने का हक, सियासी जमात बनाने का हक, ये वो हुकूक हैं जिनको किसी भी पार्लियामान के जरिए नहीं लिया जा सकता। कोई कानून साजी नहीं की जा सकती जिसके जरिए ये हुकूक लिए जाएं। जब लोग कहते हैं पार्लियामान सुप्रीम है, वो गलत कहते हैं। ये हुकूक, ये आईनी हुकूक सुप्रीम है, क्योंकि हमारा आइन ये कहता है कि इन हुकूक को कोई ताकत नहीं ले सकती। लेकिन जो आईनी तरमीम अब होने जा रही है वो आइन के आर्टिकल 8 में तरमीम पैदा करती है। और वो तरमीम क्या कहती है? वो ये कहती है कि किसी भी बुनियादी हक को सल्ब किया जा सकता है, लिया जा सकता है, शर्त इतनी है कि लेने वाला ये कहे कि ये मैं नेशनल सिक्योरिटी की खातिर ले रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी क्या चीज है? यानी कि मुल्क की हिफाजत की खातिर मैं ये ले रहा हूं। मुल्क की हिफाजत की खातिर आपके मेरे फोनों को सुना जा सकता है। मुल्क की हिफाजत की खातिर हमने देखा लोग गुमशुदा हो जाते हैं, सालों नजर नहीं आते, उनके प्यारे उनको ढूंढते फिरते हैं, दीवारों से टकरे मारते हैं, लेकिन गुमशुदा लोग गुमशुदा रहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की खातिर हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इंटर्नमेंट सेंटर बनाए गए, यानी कि कैद करने की जगह, हुकूमत खाना मैं बल्कि कहूंगा। इनके खिलाफ वकार सेठ साहब ने एक फैसला दिया, इनको गैर आईनी करार दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मुअत्तल किया फैसले को। आज दिन तक वो इंटर्नमेंट सेंटर कायम है, वो मुकदमा दोबारा सुना नहीं गया। अब आज के बाद अगर ये तरमीम हो जाती है तो ये सब कुछ आईनी हो जाएगा, क्योंकि ये सब काम जो है किसी को उठाकर आप एक काल कोठरी में डालें, उसको किसी अदालत के सामने आप साल पेश ना करें और आप ये कहें कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो अब आपको ये भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ हमें नहीं भुगतना, हर लिखने वाले को, हर सोचने वाले को, हर बोलने वाले को इसका सामना करना पड़ेगा। हर उस शख्स को, वो बलोच हो, वो पख्तून हो, वो सिंधी हो, वो पंजाबी हो, वो कश्मीरी हो,